Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, good morning. This is Sunil Prajapati, your maths teacher. Students, we were doing the first chapter, that is integer, and in this chapter we have already completed two exercises, and in the third exercise, question number 7 is in a class test containing 10 questions. Means एक क्लास टेस्ट होता है, उस क्लास टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 10 क्वेश्चंस हैं, and 5 marks are awarded for every correct answer. That means if any student give the correct answer, then he will get 5 marks. Okay, and minus 2 marks are awarded for every incorrect answer. That means if any student gives the wrong answer or incorrect answer, then he will get minus 2 marks. Okay, and 0 for questions not attempted. That means if any student does not attempt any question, then he will get 0. Okay, that means अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसका आपको कोई मार्क्स भी नहीं मिलेगा और कोई मार्क्स जो है माइनस भी नहीं होगा. That means 0. Okay, 0 मार्क्स उसका होगा. So we have given the first question, and in the first question we have given that Mohan gets 4 correct and 6 incorrect answers. Mohan gets 4 correct and 6 incorrect answer. मीन्स हो गया मोहन जो है उसके 4 करेक्ट आंसर होते हैं और 6 जो है वो कैसे आंसर्स हैं? इनकरेक्ट आंसर हैं. दैट मीन्स रॉन्ग आंसर्स हैं. व्हाट इज हिज स्कोर? उसका स्कोर क्या होगा वो आपको फाइंड करना है. ओके, सो मोहन गेव 4 correct answer and 6 incorrect answer. For correct answer, Mohan will get, जो करेक्ट आंसर मोहन ने दिए हैं उन करेक्ट आंसर्स के बदले में मोहन को कितने मार्क्स मिलेंगे? देखो, 1 करेक्ट आंसर पर 5 मार्क्स मिलते हैं. So Mohan gave 4 correct answers. 4 correct answers. Then he will get 20 marks. Okay? And for incorrect answer, Mohan will get देखो, इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स है. ओके, एंड मोहन गेव टोटल 6 इनकरेक्ट आंसर्स. सो -2 multiplied by 6. Okay, that means there is -2 marks for every incorrect answer, and Mohan gave 6 incorrect answers. That means Mohan will get -12 मार्क्स. -12 मार्क्स मीन्स होता है उसके जो मार्क्स हैं उसमें से 12 जो है क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे. ओके, सो मोहन टोटल स्कोर, मोहन का जो टोटल स्कोर है वो क्या होगा? तो 20 मार्क्स प्लस -12 मार्क्स. ओके, 20 marks and -12 marks. Okay, 20 plus minus will be -12. Okay, and now 20 plus 20 and -12 will be 8. That means Mohan's total score is 8. Okay, उसने जो 4 करेक्ट आंसर दिए थे, 4 करेक्ट आंसर जो उसने दिए थे उसके लिए उसको 20 मार्क्स मिले हैं, बट उसने जो 6 इनकरेक्ट आंसर दिए हैं उसके बदले में उसके 12 मार्क्स क्या हो गए हैं? माइनस हो गए हैं, जिसकी वजह से उसका स्कोर जो है कितना बचा है? 8 मार्क्स. सो वी हैव अनदर क्वेश्चन, दैट इज रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स. ओके,
what is her score. Means from this information we have to solve this question, and in this question we have given that Reshma gets 5 correct answers and 5 incorrect answers. So for the 4 correct answers, Reshma will get, for correct answer रेशमा will get कितने मार्क्स मिलेंगे रेशमा को? तो करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स जो है अलॉट किए जा रहे हैं यहाँ पर. ओके, एंड रेशमा gave 5 correct answer, that means she will get 25 marks. Okay, 5 correct answer है and there is 5 marks for each correct answer, that means she will get 25 marks. Okay, then for incorrect answer, Reshma will get, for incorrect answer, how many marks will Reshma will get? So there is minus 2 marks for each incorrect answer, and Reshma gave 5 incorrect answers, that means 5 multiply minus 2 will be minus 10 marks. Okay, that means Reshma will get minus 10 marks for her incorrect answer. Okay, so what will be her score? Reshma's total score will be 25 plus minus 10. 25 plus minus 10, and plus minus will be minus. 25 minus 10 will be 15. Okay, so Reshma's total score will be 15 because she gave 5 correct answer, and for that she will have 25 marks. And for incorrect answer, 5 incorrect answer, she will have minus 10 marks, and her total score will be 15. Okay student, the third question is Hina gets 2 correct and 5 incorrect answers out of 7 questions she attempts. Means out of 10 questions Hina attempts only 7 questions. ठीक है, that means 3 questions जो है वो अटेम्प्ट करती नहीं है, उसने सिर्फ 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और 7 क्वेश्चंस में से उसके 2 करेक्ट हैं और 5 इनकरेक्ट हैं. ओके, और जो उसने अटेम्प्ट नहीं किया है उसका तो उसको कुछ मिलना नहीं, उसका तो मार्क्स क्या होगा, आपको 0 होगा. 0 मींस नथिंग. ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस का मार्क्स तो उसको मिलेगा नहीं, सिर्फ जो उसने करेक्ट आंसर दिया है उसका मार्क्स क्या होगा. सो फॉर करेक्ट आंसर Hina will get, so Hina ने कितने करेक्ट आंसर दिए हैं? Hina gave 2 correct answers, and for each correct answer there are 5 marks. Okay, so she will have 10 marks. Okay, then for incorrect answers, Hina will get, Hina gave total 5 incorrect answers, and for each incorrect answer there are minus 2 marks. So Hina will get 5 into minus 2 minus 10 marks. Okay, means for correct answer Hina gets 10 marks, and for incorrect answer Hina gets minus 10 marks. Okay, so what will be her total score? Hina's total score, Hina's total score will be plus 10 minus 10. Okay, plus 10 and minus 10.
plus minus will be minus and 10 minus 10 will be 0. That means Hina's total score will be 0 because she scores 10 marks plus 10 marks for the correct answer and minus 10 marks for the incorrect answer. So her total score will be 0 here. Okay students, then our next question is question number 8, and in this question we have given that a cement company earns a profit of ₹8 per bag. मीन्स एक सीमेंट कंपनी है जो पर बैग 8 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करती है. दैट मीन्स if that company sells one bag, then it earns 8 rupees on one bag. Okay, of white cement. White cement का जो बैग है उस पर 8 रुपीज जो है वो अर्न करती है. And a loss of ₹5 per bag of ग्रे सीमेंट. और जो ग्रे सीमेंट होती है उसको सेल करती है तो उसको वन बैग पर 5 रुपीज का क्या होता है, लॉस होता है. प्रॉफिट मीन्स प्लस एंड लॉस मीन्स माइनस. उसका अमाउंट जो है क्या हो रहा है, प्रॉफिट जो है वो कम हो जा रहा है वहां पर. ठीक है, उसको हम लॉस कहेंगे यहाँ पर. तो एक सीमेंट कंपनी जो है वो 8 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करती है जब वो एक व्हाइट सीमेंट बैग जो है सेल करती है तब, और जब वो ग्रे सीमेंट बैग सेल करेगी तो उसको 5 रुपीज का लॉस होगा. Okay, so on the basis of this information we have to solve this question, and in this question we have given that a company sells 3000 bags of white cement. Okay, means that company sells 3000 bags of white cement and 5000 bags of grey cement in a month. मीन्स 1 मंथ में जो कंपनी है वो 3000 बैग्स जो है व्हाइट सीमेंट के सेल करती है और 5000 बैग्स जो है वो ग्रे सीमेंट के क्या होता है, सेल करती है. व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस. तो उस कंपनी का प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी हो कितना होगा. ठीक है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. वो फाइंड करना है आपको कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. तो सिंपल है, प्लस में आता है आंसर दैट मीन्स प्रॉफिट, माइनस में है दैट मीन्स लॉस. ओके, तो आपको पता है 1 बैग पर 8 रुपीज का जो है प्रॉफिट उसको होता है जब वो व्हाइट सीमेंट जो है सेल करती है तब. ठीक है, सो द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, देन प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी on white cement. So white cement पर कितना प्रॉफिट अर्न करती है कंपनी, तो 1 बैग पर 8 रुपीज का प्रॉफिट है एंड दैट कंपनी सेल्स 3000 बैग्स. दैट मीन्स इट अर्न्स 24,000 रुपीज. ओके, एंड दैट कंपनी सेल्स 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट एंड on gray cement the company have to bear loss of ₹5 on per bag. Okay, so loss bear by the company on grey cement. So on grey cement the company have to bear a loss of ₹5 on 5 per bag. Okay, that means लॉस जो है उसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे. एंड टोटल बैग्स कितने सेल किए हैं कंपनी ने, 5000 बैग्स. सो 5000 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड द कंपनी बियर्स 25,000 रुपीज लॉस. ओके, दैट मीन्स कंपनी जो है व्हाइट सीमेंट पर 24,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करती है और 25,000 रुपीज का लॉस होता है. अब आपको देखना है टोटल कंपनी को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है. तो सिंपली देखो 24,000 प्रॉफिट है और 25,000 लॉस है. दैट मीन्स लॉस जो है वो ज्यादा है. इसका मतलब क्या होगा, कंपनी को लॉस होगा. कंपनी बियर्स लॉस. लॉस कितने रुपीज का लॉस होगा, तो आपको क्या करना होगा, 24,000 प्लस माइनस 25,000. 24,000 plus minus will be minus 25,000
and the company have to bear a loss of rupees 1000. Okay. Okay student, then our next question is B, and in this question we have given that what is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss, मतलब ना तो उसको प्रॉफिट होना चाहिए और ना ही उसको लॉस होना चाहिए, मींस टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ना लॉस ना प्रॉफिट. If the number of grey bags sold is 6400, that means कंपनी ने जो है 6400 बैग्स जो है सेल किए. ओके, सो आपको देखो ग्रे बैग्स जो है वो 6400 सेल किए हैं और ग्रे बैग्स पर जो है लॉस कितना है, 5 रुपीज का. ओके, दैट मीन्स लॉस, टोटल लॉस ऑन ग्रे बैग या ग्रे सीमेंट भी आप कह सकते हैं. ग्रे सीमेंट पर टोटल उसको कितना लॉस होता है, देखो 1 बैग पर उसको 5 रुपीज का लॉस है, दैट मीन्स -5, एंड द कंपनी सेल्स 6400 बैग्स, दैट मीन्स टोटल लॉस विल बी 32,000. कंपनीज टोटल लॉस विल बी 32,000. दैट मीन्स अगर उसको नो लॉस नो प्रॉफिट अगर करना है, इसका मीनिंग ये हुआ कि 32,000 का लॉस होता है तो उसको 32,000 का ही प्रॉफिट करना होगा. ओके, तो 32,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कंपनी को कितने व्हाइट सीमेंट के बैग जो है वो सेल करने हैं वो यहाँ पर पता करना है. ओके, तो 1 बैग पर आपको प्रॉफिट होता है 8 रुपीज का, एंड यू हैव टू अर्न 32,000 रुपीज एज प्रॉफिट. So how many bags will the company sell? Number of white cement bag, number of white cement bags will be, total profit उसका कितना होना चाहिए, 32,000, and the company earns 8 rupees profit on 1 bag, so the company have to sell total 4,000 bags. Okay, the company have to sell 4,000 white cement bags to earn a profit of rupees 32,000. तो दोनों का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट 32,000 होगा, तो नो प्रॉफिट और नो लॉस की जो सिचुएशन है, मींस ना तो उसको प्रॉफिट होगा कंपनी को और ना ही कंपनी को लॉस होगा. So students, our next question is question number 9, and in this question we have given that replace the blank with an integer to make it a ट्रू स्टेटमेंट. मीन्स ये ब्लैंक जो है यहाँ पर आपको एक इंटीजर जो है राइट करना है, लिखना है यहाँ पर, जिससे कि ये स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाए, ट्रू हो जाए. देखिए -3 मल्टीप्लाइड डैश इज इक्वल्स टू 27. और आंसर इज +27. ओके, दैट मीन्स वी हैव अ पॉजिटिव आंसर. अब पॉजिटिव आंसर कब होगा, जब आपने सिमिलर साइन का मल्टीप्लाई किया होता है तब. ओके, दैट मीन्स ये -3 है, तो यहां पर जो नंबर है वो भी आपका क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा. ओके, तो 3 का आप कितने में मल्टीप्लाई करेंगे, 27 आएगा. नहीं पता चलता है तो आप 27 में 3 का डिवाइड कर दीजिए. 3 9 का 27, so we will have 9. Okay, -9 because minus will be plus. Okay, then the next question is 5 into dash is equals to -35, and in this question we have a negative answer, that is -35. That means हमने जो मल्टीप्लाई किए हैं जो नंबर्स, उनमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, बिकॉज डिफरेंट साइन होगा तो ही आपका आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा. ओके, ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये वाला क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा. ओके, सो इट्स एन नेगेटिव नंबर. अब कौन सा नंबर है, तो 5 में आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 35 आएगा. तो 5 7 या 35 होता है. ओके, सो आवर आंसर विल बी -7. So our next question is question number C, and in this question we have given that dash into -8 is equals to -56. मीन्स हमारा जो आंसर है वो -56 है, और आपका आंसर नेगेटिव तभी आता है मल्टीप्लाई में जब आपने एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई किया.
ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव का जो मल्टीप्लिकेशन है, जो प्रोडक्ट है, वो आपका माइनस में आता है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि 8 जो है वो माइनस का नंबर है, मींस 8 इज अ नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, तो यहां जो नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, और कौन सा नंबर होगा, तो भाई आप डिवाइड करके फाइंड कर सकते हैं 56 में, या डायरेक्टली भी आपको अगर आ जाता तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं 8 7 जा 56, so we will write 7 here. In the same way we have to solve this number also. In D number we have given that dash into minus 12 is equals to 132. यहां जो आपका आंसर है that is पॉजिटिव नंबर, ठीक है। पॉजिटिव नंबर है, दैट मींस आपने जो मल्टीप्लाई किया है वो सिमिलर साइन है, सेम साइन है। अब ये नेगेटिव है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो आंसर प्लस में आएगा आपका। तो कौन सा नंबर होगा वो, 132 में आप 12 का डिवाइड कीजिए, 12 1 is 12, 1 2, 12 1 is 12, that means that number will be 11, minus 11।